Temples at Khajuraho. These temples are located in a small village named Khajuraho at the Chhatarpur district of the Madhya Pradesh. Khajuraho was the ancient capital city of the Chandel Rajput of Bundelkhand. So, temples were built by these kings during their reign 950 to 1050 AD. Presently, 25 temples are in the existence. Most of them are the Shiva temples, whereas some of them are Vaishnav and Jain temples. They all have similar type of the architecture and the sculptures. The 64 Yoginis temples is the main temple. The arc of the temple is the best example of the ornamental style of the architecture. All of the temples were conducted with the granite stones, and Khajuraho temples were constructed in the Nagar style art of the sculptures and आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ द खजुराहो टेम्पल्स स्पेल बाउंड द विजिटर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि खजुराहो जो है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो नामक जो गांव है वहाँ पे खजुराहो टेम्पल आया हुआ है। एंड जो बुंदेलखंड के पहले चंदेल राजपूत जो थे उनकी जो कैपिटल थी वह बुंदेलखंड सिटी थी। तो इस टाइम पे जो है इस किंग के टाइम पर यहाँ पे 950 से 1050 के टाइमिंग में जो है यहाँ पे 25 टेम्पल्स जो है वे बने थे। एंड उसमें जो है ऑलमोस्ट जो है शिवा टेम्पल्स एंड जैन एंड वैष्णव टेम्पल्स थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सभी टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स था वह सिमिलर था। एंड 64 योगिनी का जो टेम्पल है वह मेन टेम्पल माना जाता था। एंड आर्किटेक्चर जो है उसमें यह जो टेम्पल है यह एक मेन माना जाता था। तो इस तरह से खजुराहो जो टेम्पल्स है वह जो है कंस्ट्रक्शंस जो है उसका नगर स्टाइल की तरह से उसका स्कल्पचर्स किया गया है। एंड वास्तु की तरह से जो है इस टेम्पल का स्कल्पचर्स जो है यहाँ पे आर्किटेक्चर इसका किया गया है। नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इट इज़ सिचुएटेड नियर द बे ऑफ द Bengal at the Puri district in the Odisha. It was constructed in the 13th century during the reign of the King Narasimhavarman I, who belonged to the Garg dynasty. This chariot temples drawn by the 7 horse took the forms of the chariot of sun god. It has 12 massive wheels, providing beauty to the pedestal of the temple. These wheels reflect 12 months, and each wheel has 8 spokes which shows 8 prahars of the day. Details of the motif and the subjective diversity of the temple is unparalleled. This temple has been built by black stones, hence it is called a Black Pagoda, Odisha. These remains reflect the sculptures and civilization of the 13th century Odisha. तो यहाँ पे हमें बताया है कि कोणार्क टेम्पल जो है यह जो है ओडिशा डिस्ट्रिक्ट के पूरी यहाँ पे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे आया हुआ है। बंगाल की खाड़ी के जो है उसके नज़दीक में आया हुआ है। एंड यह जो है यह गर्ग डायनेस्टी के जो नरसिंहवर्मन किंग थे उनके समय में इस मंदिर का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था। एंड यहाँ पे जो यह मंदिर है इस टेम्पल में जो है 12 मासिव व्हील्स है। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि जो यह जो 12 मासिव व्हील्स है यह जो इस टेम्पल के है उस टेम्पल के ब्यूटी को बढ़ाते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया जो कि 12 मंथ जो है उसे ब्राइट वगैरह रखते हैं। एंड इस तरह से यहाँ पे बताया है आगे कि इसमें जो है 8 तीलियाँ बनी हुई है जो कि यह दिन के 8 प्रहार को दर्शाते हैं। एंड इस मंदिर का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था वह 13th सेंचुरी में ओडिशा में हुआ था। एंड यह जो टेम्पल है यह जो है यह ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल। This temple is situated at the Tanjore in the Tamil Nadu. This temple was built during the 1003 AD to 1010 AD. It is a Shiva temple, so it is called the Brihadeshwar. It is built by the king Rajaraj I of the Chola dynasty. It is known as the Rajrajeshwar temple. The height of this temple is 500 feet. Its width is 250 feet. It is spread in the vast area surrounded by the wall. Its summit is 200 feet high above the ground. Hence, these temples attain the place in the temples of high pinnacles
This is the marvelous heritage of the architecture art of India due to the gorgeous and huge size of the pinnacle and the artistic decoration. In the same way, it has secured a place among the best temples of South India. It has been constructed in Dravidian style of art. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह बृहदेश्वर टेम्पल जो है यह तमिलनाडु के तांजोर में आया हुआ है एंड यह जो है 1003 to 1010 एडी के टाइम ड्यूरिंग में यह बना हुआ यह जो टेम्पल है यह बना। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि उस टाइम पे जो चोला डायनेस्टी के किंग राजराज फर्स्ट जो वन थे उन्होंने यहाँ पे करवाया था एंड उसके बाद में जिसकी वजह से जो है इस टेम्पल को राजराजेश्वर के नाम से भी जाना गया। एंड इस टेम्पल की जो लंबाई है वो 500 फीट एंड इसकी चौड़ाई जो है वह 250 फीट जितनी है। एंड इसका जो शिखर है वह जो है यह ज़मीन से 200 फीट ऊंचाई तक का दिखाई देता है। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया है कि यह आर्किटेक्चर की तरह से अगर उसे देखा जाए तो यह जो है द्रविडियन स्टाइल के आर्ट में यह बना हुआ है एंड इसकी यह जो है यह काफ़ी जो है हेरिटेज वाला एंड गॉर्जियस टेम्पल माना जाता है। कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट द दिल्ली। इट वॉज बिल्ट इन द 12th century by Qutbuddin Aibak, who was the founder of the Ghulam dynasty. After his death, the remaining work was completed by his son-in-law Iltutmish. This 72.5 meter tall skyscraper is made out of the round red stone and marble. It is the circumference is the 13.75 meter. It at its base and it is reduced to 2.75 meter at its top. Verses of the Quran have been engraved on it. It is the tallest one minaret of the India. तो यहाँ पे हमें बताया है कि कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली में है और यह 12th सेंचुरी में जो है कुतुब मीनार ऐबक ने इसको बनाना इसका कंस्ट्रक्शन जो है वह स्टार्ट करवाया था एंड उसकी डेथ होने के बाद जो है उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने इसे जो है कंप्लीट करवाया। एंड यह जो कुतुब मीनार है यह 72.5 मीटर टॉल स्काई है एंड यह जो है 13.75 सर्कमफ्रेंसेस है एंड 2.75 जो रिड्यूस होता है ऊपर की तरफ जब जाता है तो 2.75 जितना रिड्यूस हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस पर जो है हम्पी This town is situated on the bank of the river Tungabhadra of Hospet in the Bellary district of the Karnataka. Hampi was the capital city of Vijayanagar kingdom. The ruler of the Vijayanagar kingdom were lovers of art. Peculiar type of the architecture was developed in the Vijayanagar during their reign. The period of the Krishna Devaraya was considered to be the golden period of this art as it reached to its highest peak. The main features of the architecture style of the Vijayanagar was to carve out use of the magnificent pillars from the stones. Pillars and the columns made were artistically adorned with the figures of god, goddess, humans, animals, warriors, and the dancers. The Hampi village of the Vijayanagar kingdom during the reign of the Krishna Devaraya, the Vitthal temple and the Hajra temple were built beside it. Virupaksha temple, Achyutarai temple of the Lord Krishna are the best examples of the architecture. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो टेम्पल है यह कर्नाटक स्टेट के बेलारी डिस्ट्रिक्ट के जो है हॉस्पेट में आया हुआ है एंड यह जो है विजयनगर की जो है कैपिटल सिटी है। एंड यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उस टाइम पे वे जो है लवर्स ऑफ आर्ट थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि इस टाइम पे जो आर्किटेक्चर है उनका जो है डेवलप हुआ एंड इस तरह से यहाँ पे यह जो स्तंभ है यह इसकी खास विशेषता है कि इस स्तंभ में जो है यहाँ पे मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर एंड डांसर्स वगैरह जो है इन सब के यहाँ पे हमें जो है हमें यहाँ पे शिल्प स्थापत्य वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे कृष्ण देवराय के टाइम पे जो है इसका जो है काफ़ी उस टाइम पे इस ड्यूरिंग में जो है काफ़ी सारा इसमें जो है यहाँ पे चेंजेस वगैरह हुआ और इस शिल्प स्थापत्य को जो है काफ़ी ख्याति मिली थी। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि उस टाइम पे जो है विरूपाक्ष टेम्पल और कृष्ण अच्युतम टेम्पल वगैरह जो है इन सब का भी यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर हुआ था।